very good morning students and welcome all of you. Okay, so after the Diwali vacation, okay, so we are going to start our SEM 2 session. Okay, so for the SEM 2 session, for the first chapter of the SEM 2 session is what students? That's the chapter number 8. Okay, like the chapter number 8 and the name is what? Is decimal. Okay, so let's be continue the chapter. Okay, so for this chapter, so now at first, okay, wait a moment. Yes, so for first, ठीक है, like what is a decimal number? Okay, so now we check the definition. Like a decimal number is a number. Okay, so you clear. So it is also a number. So that written using a decimal point. Okay, what is a decimal point? So like only a point like this. Okay, so this is called a decimal point. Okay, so like after this, now we check once more like this. Okay, you can see this point. Okay, so ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये डेसिमल पॉइंट है. ओके, so then a decimal now have a whole number part. Okay, so then like a decimal point, so then a decimal part. Okay, so ये चीज़ के अंदर आपको क्या समझाया है कि आपका जो भी डेसिमल नंबर होगा उसके अंदर एक तो आपका कौन सा पार्ट होगा? होल नंबर पार्ट. देन like a decimal point like this. Okay, and now then a decimal part. Okay, let's check it. Okay, so for this number, wait a moment. Okay, so for this number, so you can see this 46 now point. Okay, so like this point is called the decimal point and like 37. Okay, so like in this number, so like this part is called what? Whole number part. So because the number is what? 46 and we all know that 46 is whole number. Okay, so then like a decimal point, so you can see here, and then the last part is what? The decimal part. Okay, so for this, okay, we have to now be name the place name. Okay, so for this number, okay, wait a moment students, for this number 123. Okay, so you can see the place name is what? Is ones. Okay, now is tens and now is the hundreds. Okay, now but like the number is what? 46.37. Okay, so we have to start to name the place name. Okay, तो मतलब ये नंबर में हमको क्या करना है? इसके प्लेसेस का नेम देना है. सो अब बताओ इसका वंश कहाँ से होगा? ओके, सो फॉर फर्स्ट इज द, ठीक है, द वंश प्लेस. सो कुछ स्टूडेंट यहाँ से सोच रहे होंगे कि इसका वंश यहाँ से होगा. नो, इसका वंश यहाँ से नहीं होगा. सो बिकॉज वी स्टार्ट लाइक आफ्टर द डेसिमल द पॉइंट. ओके, मतलब ये आपका डेसिमल पॉइंट है. इसके बाद में जो पहला नंबर है इज कॉल्ड द वंस डिजिट, देन इट्स कॉल्ड द टेंस डिजिट. ओके, इसके बाद वाला क्यों काउंट नहीं किया? सो बिकॉज लाइक द पार्ट इज द डेसिमल पार्ट. ओके, सो ये इसके साथ में इंक्लूड नहीं होगा. तो फिर ये पार्ट की वैल्यू क्या? ओके, सो वेट अ मोमेंट, ये पार्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ये टेंथ हो जाएगी. ओके, लेकिन स्पेलिंग तो सेम है. तो क्या डिफरेंट है? इसका सिंबल भी टी हो गया, इसका भी सी हो गया, लेकिन ये आपका टेंथ है. सो यू कैन सी द स्पेलिंग. ओके, ठीक है, नाउ यू रोटेट द स्क्रीन एंड यू सी द स्पेलिंग. ये क्या हो जाएगा? ये आपका टेंथ था, लेकिन ये क्या हो गया? ये आपका हो गया. ओके, ये टेंथ हो गया. ओके, सो देन आफ्टर 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा हंड्रेड्स. सो आपको क्या डिफरेंस लगा इसके अंदर? ओके, लास्ट में स्पेलिंग में ये आपकी हो जाएगी टेंथ की स्पेलिंग TE नाउ लाइक NS, लेकिन आपके टेंथ की क्या हो जाएगी? TE लाइक N, और उसके बाद आ जाएगा आपका THS. इसको क्या बोलेंगे? इसको टेंस बोलेंगे. मतलब सारी स्पेलिंग के पीछे आपको क्या लगाना है?
लाइक THS, लेकिन कब, वेट अ मोमेंट। सो ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं लाइक द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। सो नाउ एट फर्स्ट वेट अ मोमेंट, so then after like a decimal, so you can now be read the decimal number in 4 parts, okay। अब इस नंबर को हम रीड कैसे करेंगे? सो नाउ एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू रीड अ डेसिमल नंबर, ओके। सो नाउ इन द जनरल, ठीक है, वी ओनली नाउ रीड व्हाट इज व्हाट यू कैन सी हियर, ओके, 46.37, okay। so in the general, so but ठीक है, like according to the method, so at first now we read the part of whole number part, it means 46, okay। we only read which part? The whole number part, it means we say 46, then we read the decimal point like end, okay, we read the decimal point like end, so then we read the decimal part as what is, now first is what, like 37, okay। so but so you can see here like the place value of, now the 7 is what, hundreds, you can see here 46 like 37, okay। so then the place value of the 7 is what, hundreds, not hundreds, it is what, hundreds, okay। इसके पीछे क्या लग जाएगा, इस TSH, ये यहाँ पे इसके पीछे में जहाँ पे आपको THS दिख रहा है, ये सारी की सारी ये प्लेस वैल्यू कहाँ पे आएगी, ओके। सो लाइक बिफोर द डेसिमल, ये डेसिमल के पहले पहले ही आ जाएगी, उसके बाद में तो आपका क्या आ जाएगा, होल नंबर पार्ट, ओके, ठीक है। ये 46 क्या है आपका, ये आपका होल नंबर पार्ट है, लेकिन ये पॉइंट के बाद में कौन सा पार्ट हो गया, डेसिमल पार्ट हो गया, ओके। ये 3 की प्लेस, इसकी प्लेस नेम क्या है, इसका 10th है, ओके, इसका ठीक, इसका 10th हो जाएगा ना, ओके। ये 7 का क्या हो जाएगा, hundreds, ओके। सो आपको क्या करना है, वेरी इजीली आपको पहले रीड करना है 46 एंड, ओके, 46 एंड, ठीक है। उसके बाद में आपका 37 एंड देन यू से द प्लेस वैल्यू hundreds, ओके। तो आपके माइंड में होगा ये पॉइंट के बाद में तो आपका क्या है, आपका 37 है, तो आपको लास्ट की प्लेस वैल्यू ही काउंट करनी है, 3 की प्लेस वैल्यू काउंट इसमें नहीं करनी। यू कैन सी हियर 46, ओके, 46.37, इसको हम कैसे रीड करेंगे इन द वर्ड्स, इसको रीड करेंगे 46 एंड, ठीक। उसके बाद में आपका 37 hundreds, ओके। सो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, यू कैन सी द आंसर, ओके, यू कैन सी द आंसर हियर, ओके। चलो फिर उसके बाद देखते हैं लाइक द डेसिमल्स एंड, ओके, वेट अ मोमेंट, कहाँ चले गए, ओके। अब देखो इसके अंदर आपका डेसिमल, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन, वेरी गुड, आपको याद है ना फ्रैक्शन, वेरी गुड। याद नहीं है तो यू हैव टू रिकॉल इट नाउ, start to recall fraction, like this number is called a fraction like 1/2. Now in this fraction 1 is called numerator and like 2 is called denominator, okay, got it dear students, okay। so for the decimal and the fraction, so इसके अंदर आपकी क्या similarities है, so now we will discuss, okay। so that a decimal is, okay, so that a decimal is now just the another way to write a fraction। आपको क्या समझाया, ये डेसिमल क्या है, आपके फ्रैक्शन को लिखने का ही एक स्पेसिफिक, या क्या उसको क्या बोल सकते हैं, उसका अनदर वे है। लाइक आपने लिखा 7/10, ओके, मतलब आपको समझ में आया, ये 10 इक्वल पार्ट्स के 7 पार्ट्स है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7/10, ओके। सो नाउ इट्स टर्न टू राइट इन द डेसिमल फॉर्म, इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.7। सो बट हाउ, सो वी विल नाउ लर्न इन दिस वीडियो, सो यू वॉच दिस वीडियो नाउ बी कंप्लीट, ठीक, ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके।
after this, okay, fractions you can see here. Okay, wait a moment, it will now we learn after this. Okay, okay, for this you can see here, like this chart is what, for 0.1. okay, now it represent what, 0.1. now it represent what, 0.10. okay, so you can see here. अब इसमें देखो, आपको मैं क्या बताता हूँ, जो अगर आपको इसका फ्रैक्शन बनाना हो तो आप पहले क्या काउंट करोगे, लाइक दी ऑल टोटल पार्ट्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स इसके टोटल पार्ट कितने हैं. सो देर आर नाउ द 10 टोटल इक्वल पार्ट्स. ओके, सो देन वी काउंट द शेडेड पार्ट मीन्स नाउ इज ओनली वन शेडेड पार्ट, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/10. लेकिन ओके, सो बट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, 0.1. सो बिकॉज 1 इक्वल पार्ट आपने देखे इसके 1 1 1 1 इक्वल पार्ट है, तो इसको हम ये टाइप से इसको डेसिमल में लिखने की प्रोसेस होगी. ओके, सो नाउ इज द मेथड, इसको हमने ऐसे लिखा कैसे. सो वेट अ मोमेंट, सो वी विल लर्न नाउ. ओके, आफ्टर दिस, सो यू कैन सी हियर लाइक वन मोर. So is what is 0.10 means what we can see here. So you can see here, so now in this box like there are 100 the equal boxes. okay, इसके अंदर आपके कितने इक्वल बॉक्सेज है स्टूडेंट, 100 इक्वल बॉक्सेज है. और 100 में से आपके कितने शेडेड है, यू कैन नाउ बी काउंट हियर. आपके ये 10 है, ये क्या कर रखे हैं, शेडेड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ इज 10/100. और इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, इज 0.10. ओके, लेकिन आपको ये तो कन्वर्ट करना आ गया, लेकिन इसका हमने इसको डेसिमल में लिखा कैसे. सो वी विल नाउ बी लर्न. ओके, सो वेट. ओके, इज completed. Okay, wait a moment. Decimals by comparing. Okay, comparing, rounding, decimals. So okay dear student, wait a moment. So at first, okay, you have now been learned to represent. Okay, so you have now be learned to shade the part now using the decimal number. यस. ओके, सो अब देखो स्टूडेंट, ये हमने ये नंबर को हम क्या रीड करेंगे, 1/10. ओके, सो वाई इज 1/10. सो बिकॉज अगर ये नंबर को हमको रीड करना है, सो फर्स्ट वी चेक द होल नंबर पार्ट. इसके होल नंबर में कितना है, 0 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक इन द वर्ड. ओके, बाद में आपका 1 बचा, ये कौन से प्लेस पर है डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया, ये 10th प्लेस पर हो गया. ओके, ये कौन से प्लेस पर है आपका, ये 10th प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10. इसको हम कैसे रीड करेंगे, 1/10. ओके, आफ्टर दिस यू कैन सी दिस, इसको हमने क्या रीड किया, इस 10 hundreds. स्पेलिंग चेक करो, एक तो होता है आपका 100, एक तो क्या होता है आपका hundreds होता है, लेकिन ये है hundreds, पीछे आ गया इसके THS, ये डेसिमल के बाद में आएगा, आपको यही ध्यान रखना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. ओके, चलो आगे करते हैं इसके. उसके बाद आता है द डेसिमल्स. ओके, अब आपको इसमें क्या बताया है, ठीक है. नाउ इट डज नॉट मैटर लाइक हाउ मैनी zeros now you add to the end of a decimal. now the value does not change. इसका मतलब, so it means they all are equal. so ये ऐसा क्यों हुआ, आपको समझ में आया, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ. ओके, यू कैन सी हियर वी हैव टू लाइक दिस. ओके, लाइक द इक्वल स्क्वायर. ओके, ये भी इतना ही स्क्वायर है और ये भी इतना ही स्क्वायर है. सो आप देखो, ये स्क्वायर के कितने इक्वल पार्ट किए, इसके 10 इक्वल पार्ट किए, लेकिन इसके इन्होंने कितने इक्वल पार्ट्स किए, 100.
तो आपको पता है ये भी 1 का 1 ही रहेगा अभी, और ये भी 1 का 1 ही होगा। इसके आगे भी इक्विवेलेंट और फाइंड कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल्स। ओके, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल्स। ओके, वेट अ मोमेंट। चलो इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना। चलो ये देखो, ये आपका 1.3। ओके, सो देन आपका क्या हो गया 1.30, और ये आपका क्या हो गया 1.300। ओके, चलो अभी कुछ करते हैं। तो मतलब आपकी तीनों की तीनों वैल्यू क्या है कि इक्वल है। चलो इसको आप रीड कैसे करोगे, मीन्स नाउ यू हैव टू राइट इन वर्ड्स। इसको हम कैसे लिखेंगे, वन एंड आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रीथ लेंथ हो गया ना। ओके, वेट अ मोमेंट। आपका 1 देखो, स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, आपका 1.3 है स्टार्टिंग। नाउ वी राइट फर्स्ट द होल नंबर पार्ट। इसको हम क्या बोलेंगे 1। सो हमने सिर्फ क्या लिखा 1। फिर उसके बाद आपका डेसिमल आया तो उसके जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे, लाइक एंड। और उसके बाद आपकी वैल्यू कौन सी है, ये तो आपकी 10th वैल्यू ओनली। तो आप क्या लिखोगे नाउ लाइक 3/10। ओके, लाइक 3 नाउ 10th। ओके, चलो इसका तो नंबर में हो गया। चलो नेक्स्ट फॉर द सेकेंड। अब आपका क्या है 1.30। अब ये भी वर्ड में लिखना है। कैसे वर्ड में लिखोगे, लाइक ओके। अब इसको वर्ड में लिखने के लिए वी विल यूज द सेम पैटर्न, सेम मेथड। सो आपका होल नंबर पार्ट हो गया। क्या रीड करोगे इसको 1। चलो इसको आपने रीड कर दिया 1। उसके बाद आपका डेसिमल आया, क्या रीड करोगे, इसको एंड लिखोगे। ओके, फिर आपका ये नंबर क्या है, आपका डेसिमल पार्ट है, ये तो आपका 30 है। मीन्स ये जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है 100s। ये जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी 100s। मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यू राइट 30 100s। ठीक है, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे इसको 100s लिखेंगे। चलो विल डिस्कस मोर। ओके, सो इसको आपके और भी बताया है। एक तो 1.3, देन 1.30, 1.300, और ये देखो इतना बड़ा 1.3000। दे ऑल आर इक्वल, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलो लेट्स वॉच इट। जो आपको किसी के अंदर ये टाइप से गिवन हो 1.5, ओके, बीच के अंदर एक ब्लैंक हो एंड 1.50, आपको क्या साइन लगाना है, या तो इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन। सो यू विल यूज द साइन इज इक्वल टू। सो बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। क्या सीखा है हमने सीखा है नाउ इट डज नॉट मैटर like how many zeros you add to the end of that a decimal, the value now does not change। उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप चाहो जितने जीरो रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखो 5 क्या है आपका होल नंबर, पीछे जीरो लगा है, क्या हो गया 50। क्यों, सो बिकॉज नाउ देर इज नो डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल नहीं था इसीलिए वैल्यू चेंज होगी। बट 5 एंड 5.0, सो दे आर इक्वल और नॉट, यस दे आर इक्वल। सो क्योंकि ये डेसिमल के बाद में हम चाहे जितने जीरो लगा सकते हैं, द नंबर इज रिमेन व्हाट 5, 5 एंड 5। ये नंबर आपका 5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, फिर इसके बाद इन्होंने क्या कंपेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंपेयरिंग। ओके, सो ये आपका 3.42 और ये आपका 3.47। सो स्टूडेंट देखो, इसको हमने ये पैटर्न भी सीख लिया कि इसको वर्ड में कैसे लिखना है। ओके, लेकिन इसको हम ठीक है रीड कैसे करना है, आप जब इसको सॉल्व करो तब इतना लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। सो देखो लाइक दिस नंबर। ओके, तो इसका डेसिमल ये सॉरी क्या हो गया, इसका होल नंबर पार्ट हो गया। इसके होल नंबर पार्ट को इसको रीड करने का क्या मेथड हो जाएगा,
इसके इसके होल नंबर पार्ट को रीड करने का मेथड हो जाएगा इज द सेम, इज 3। इसको हम क्या रीड करते हैं, इज 3। बाद में ये डेसिमल को आपको पॉइंट पढ़ना है, ओके। सो 3 पॉइंट और उसके बाद वाले को आपको सेपरेट इसकी डिजिट्स को रीड करना है। साथ में इसको हमको 47 नहीं पढ़ना है, मीन्स आपका क्या हो गया, ठीक 3.47 लाइक द सेम ये आपका 3.42। सो वी ऑल नाउ बी नो डैट ये दोनों में से आपकी बिगर वैल्यू कौन सी हो जाएगी। चलो हम करते हैं इसको कंपेयर। इसका वंस सेम है, ओके। ये दोनों की इसकी वंस डिजिट इक्वल, ओके। देन ये डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट हो जाएगी, इसकी 10th। इसकी 10th डिजिट भी इक्वल, लेकिन इसकी हंड्रेड्स वाली डिजिट्स इक्वल नहीं है। सो जो बड़ी होगी वो वैल्यू भी क्या होगी, बिगर होगी। मीन्स हम क्या लिखेंगे, आपकी वैल्यू बिगर कौन सी हो जाएगी, इज ठीक 3.47, ओके। चलो आगे और देखते हैं डेसिमल्स, इसको भी कंपेयर कर लो। चलो 1.3, अब आपको कंपेयर करना है 1.13, ओके। आपको कंपेयर करना आ गया। चलो यू चेक और आप कंपेयर करो एक बार और बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसकी वंस डिजिट में 1 है, इसकी वंस डिजिट में भी 1 है, तो दे आर इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी 10th डिजिट में 3, इसकी 10th डिजिट में क्या है, इसकी 10th डिजिट में आपका 3 है, लेकिन इसकी 10th डिजिट में क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें से आपका ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर, इज 3। सो 3 इज नाउ बी ग्रेटर देन 1.13। सो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे लाइक द सेम। जो आपको समझ में आया, राउंडिंग, ओके। वेट अ मोमेंट, राउंडिंग को बाद में थोड़ा देखते हैं। सो इसकी ज़रूरत नहीं है। नियरेस्ट वैल्यू, द एस्टिमेटेड वैल्यू, चलो इसको हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में, ओके। सो okay, so like after this we are going to start the first exercise of the chapter number 8, okay. So for the first you write the following number in the given table, okay. So means we have to write the numbers in the table, okay. So wait a moment, okay, wait a moment. Okay, means for the first is like the number and we have to write in the table is the place of hundreds and the tens, now the ones and tens, okay. The tens is what, after the decimal is called the tens, okay. So wait a moment. So for first, now in the tens we have what, 1 2 now 3, okay. So we will write first 4 is what, is 3, okay. Then सो इसके टेंस के प्लेस पे आपने क्या लिख दिया, ओके। वेट अ मोमेंट, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, नहीं दिखेगा, ओके। तो आपने लिखा 3 यहाँ पर, ओके। यू कैन सी हियर 3, ओके। इसके वंस में कितना है, सो 1 हियर ओनली। सो वी विल राइट व्हाट, हियर 1, यू कैन सी हियर, वी राइट हियर नाउ 3। सो बिकॉज ये टेंस प्लेस पर था और इसके वंस प्लेस पर क्या है, 1। सो वी राइट ओनली व्हाट 1। चलो फिर आगे चेक करते हैं। फिर उसके बाद इसके टेंथ्स में कितने हो जाएंगे, इसके टेंथ्स में 2 हो जाएंगे ना, ओके। तो इसके टेंथ्स में कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमने इसके टेंथ्स में कितना लिखा, 2। तो आपका नंबर क्या बन गया, सबसे पहले आपका टेंथ्स, आपका वंस और आपका टेंथ्स मीन्स 2। तो आपका नंबर क्या बन गया, ओके, ठीक 31.2। तो आप क्या लिखोगे नंबर के प्लेस पे, 31.2। सो लाइक इज द सेम, आप इसका सेकेंड भी सॉल्व करोगे, बट यू सॉल्व योर सेल्फ, ओके। सो देन आफ्टर दिस write the following numbers in the place value table, okay. Means now we have to write the numbers in the place value table. So this is the place value table. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 19.4 is the first question, okay. So at first you can see here आपका 1 की वैल्यू क्या है इसमें, सॉरी चलो ये 1 से स्टार्ट करने के पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वंस प्लेस पे क्या है, यू चेक द प्लेस ऑफ वंस। आपका वंस प्लेस कहाँ पे होगा,
आपका वंस प्लेस कहाँ पे होगा? ठीक, 4, नो नॉट 4, आपका वंस प्लेस होगा 9 पे। सो बिकॉज हम ये डेसिमल के पहले जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे? वंस प्लेस। ओके, आपने क्या लिखा? एट द प्लेस ऑफ वंस इज 9। ओके, फिर आपका टेंस प्लेस पे क्या हो गया? 1। सो आपने टेंस प्लेस पे क्या लिखा? वंस। फिर आपका उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस में कुछ है नहीं, सो यू राइट ओनली 0। फिर उसके बाद आपका टेंस प्लेस कौन सा प्लेस हो गया आपका? You don't be confused in the pronunciation of the tense and the tense. Okay, कंफ्यूज नहीं होना है। ये डेसिमल के जस्ट उसके बाद में आएगा, मतलब आपका टेंस। ओके, यहाँ पे कौन सा है? 4। तो ये क्या हो गया? इसका प्लेस वैल्यू चार्ट। लाइक द सेम हम इसके अलावा भी प्लेस चार्ट बनाएंगे जो भी। सो यू सॉल्व योर सेल्फ। आपको समझ में आया ना? तो आपको आगे वाले सेल्फ करने हैं। राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डेसिमल 7 टेंस। ओके, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ। 7 टेंस मतलब इन्होंने क्या बोला है? 7 टेंस मतलब इसमें होल नंबर नहीं है। सो आप क्या करोगे? आपने 0 लगाया, फिर आपको पॉइंट लगाना है। ओके, उसके बाद 7 टेंस मतलब इसके टेंस प्लेस पर कितना है? 7। तो क्या हो गया आंसर? 0.7। ओके, 4b, इसके बी में आपको क्या करना है? इसके बी में करना है लाइक 2 टेंस मतलब आपका 2 टेंस एंड 9 टेंस। 2 टेंस, अब इसको कैसे लिखेंगे? जरा वेट करो। 2 टेंस, यूज योर माइंड। क्या लिख दिया आपने? इसमें लिख दिया 2, बट ये तो आपका टेंस प्लेस पे है। आपका वंस है कोई इसमें? नहीं, आपका इसमें एक भी वंस वैल्यू गिवन नहीं है। तो आप वंस प्लेस पे क्या लिखोगे? 0। फिर उसके बाद आपका एंड आता है, उस प्लेस पे क्या पुट करना है? डेसिमल। 9 टेंस मतलब इसके टेंस प्लेस पर है 9, तो आपका 20.9। ओके, अब ये टाइप से भी कुछ आते हैं। क्या हो गया? 14.6। वेरी सिंपल, 14.6। देखो ये तो बहुत ही इजी से आपसे हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? ओके, सो यू कैन सी द आंसर हियर। अब देखो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, ठीक है, अब देखो जो आपके पास एक क्वेश्चन है, यू एक्सपेंड लाइक 265.1। क्या करना है आपको? इसको आपको एक्सपेंड करना है। सो देन हाउ विल यू एक्सपेंड? द नंबर इज 265.1। ओके, सो स्टेप नंबर वन, यू चेक द होल नंबर पार्ट। आपका होल नंबर पार्ट क्या हो गया? इस 265। चलो इसको हम करते हैं एक्सपेंड। 200 प्लस 60 प्लस 5। ओके, इसके बाद में आपका डेसिमल आया, सो यू विल यूज द सेम साइन इज प्लस। बट उसके बाद में आपके पास में जो स्टार्टिंग फर्स्ट होगा वो 10th है, मतलब इज द 10th। कैन सी हियर द 10th है। इसको आप कैसे लिखते हो? 1/10। कैसे लिखोगे? 1/10। यहाँ पर भी आपकी वैल्यू है 1, सो यू विल राइट 1/10। ओके, इसके बाद आया तो वो क्या हो जाएगा? हंड्रेड्स मीन्स 1/100 को क्या पढ़ोगे? हंड्रेड्स। इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? वी रीड हंड्रेड्स। ओके, सो इसकी प्लेस वैल्यू होगी, तो मतलब इसका नंबर क्या बना? इस 265.1। ओके, फॉर डी यू कैन सी हियर 70। ओके, आपका 70 तो 70 है, लेकिन ये कौन से प्लेस पर है? अपॉन में 10 है, मतलब ये 10th प्लेस पर है। सो एक पॉइंट लगाया एंड देन 70.8। वेरी गुड। देन आपका ई हो गया इज लाइक 88/10। अब ये कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे? आपका तो ये तो पूरा 10th प्लेस पर है, लेकिन आपका नंबर है वो ऊपर का 88 है। सो यू एक्सपेंड द नंबर। इसको आपने 80 और प्लस में क्या किया? प्लस में 8 किया, और अपॉन में क्या किया? अपॉन में 10 किया। गॉट इट? चलो इसके अपॉन में 10 किया, फिर इसको अलग अलग कर दिया। आपका 80/10 प्लस लाइक 8/10। ये दोनों में 10 का डिवीजन हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो 8 बचा। ओके, 8, और ये आपका ये 10th की वैल्यू होगी, तो क्या लिखोगे?
0.8। ओके, चलो इसको लिखने का एक और मेथड है यूजिंग द डिवीज़न मेथड। चलो हम चेक करते हैं। सो ठीक, लाइक हाउ द डिवीज़न मेथड। ओके, सो देखो जो आपका क्लास टाइमिंग इज फिनिश। सो देखो इसके आगे का जो भी होगा सो वी विल नाउ बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो ठीक है, यू प्रैक्टिस ऑन लाइक रीड द डेसिमल नंबर। ओके, you read the decimal number, then you practice on the whatever is now be given in the homework. ठीक है, so okay everybody, so bye.